Hello everyone, I am Dr. Mahesh, Assistant Professor of Chemistry, Mukundlal National College, Jamnagar. In this video, we will discuss a numerical based on calculation of mean free path of a gas molecule. Thereafter, we will take up the concept of ideal and non-ideal gases. Then, thereafter, we will discuss the concept of compressibility factor. So, taking the first numerical based on calculation of mean free path. So this is the numerical that a molecular diameter of a gas is 5 angstrom at 0 डिग्री सेल्सियस. so, आपको दिया गया है मोलिकुलर डायमीटर सिग्मा गिवन है, सिग्मा आपको गिवन है और टेम्परेचर कितना लिया हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन है. Calculate mean free path of the gas molecule. So our target is to calculate mean free path and that is represented by L. तो इसका L का हमने एक derivation किया था. And what is the derivation for that? So we are having the formula of N. It is 1 upon root 2 pi sigma square N. Root it is 1 upon root it is 1 upon root pi sigma square n. So n is what? N are the number of molecules per unit volume. Sigma आपको given है that is 5 angstrom. तो molecule diameter sigma given है आपके पास 5 angstrom और angstrom को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं by multiplying 10⁻⁸ centimeter. So it becomes sigma becomes 5 into 10⁻⁸ centimeter and then our target is to calculate this n. So n क्या आपके पास है वो हमने calculate करना है. So firstly we have to take up the calculation of n. अब हम देख के जो आपको टेम्परेचर गिवन है that is 273 Kelvin, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर and this is the condition for STP. तो STP पे हमें पता है कि मॉलिक्यूल STP conditions पे वॉल्यूम ऑफ ए गैस कितना होता है 22.4 लीटर और 20,400 सेंटीमीटर क्यूबिक. तो ये आपका इतना होता है. अब मैं इसको लेना चाहूँ, इसको हमने कन्वर्ट करना है इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं. सो इस मॉलिक्यूल में पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा n विल बी द एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय द वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन. और आप सिंपली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर आपके पास 20,400 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वॉल्यूम है दैट विल कंटेन द मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर n नॉट एंड विच इज इक्वल टू 6.022 10⁻23. सो इन ए 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ volume the number of molecules will be 6.022 10⁻23 divided by this value 22,400. So this will be the number of molecules per unit volume. So it will be the value of n. So after calculation it is found to be 2.689 10⁻19 molecules in a 1 centimeter or 1 cc of the volume. Sigma आपको given है sigma 5 angstrom, 5 into 10⁻⁸. Now you have to put all the parameters in this equation. So L will be 1 upon root pi is equal to 3.14 and this is value of sigma square. So sigma is 5 into 10⁻⁸ its whole square into this is 2.689 10⁻19. And just you have to do the calculations and after calculation this is found to be 0.035 10⁻⁵ centimeter. So this is how a mean free path can be calculated. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो यूनिट है इसका सेंटीमीटर में कैसे आया. तो यहाँ पे देखा जाए सिग्मा स्क्वायर का यूनिट क्या था आपके पास सेंटीमीटर में था एंड इट्स होल स्क्वायर बिकम्स इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था इट वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वॉल्यूम. सो इट इज
1/cm³। और नंबर को हम मॉलिक्यूल्स को हम लिखें या ना लिखें तो यूनिट नंबर का कुछ नहीं होता है, सो इट बिकम्स 1/cm³। आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 1 or you can say centimeter inverse. So this is in the denominator, so I have to move this into numerator and this becomes centimeter here. So you have to keep the units in mind also. Likewise, there is another numerical you have to solve this, that is RMS velocity of root mean square velocity of hydrogen at STP is 1.83 10⁵ centimeter per second and its mean free path is this one. Calculate the collision number at STP condition. So this is your homework and you have to calculate the value of Z, collision number at STP condition, using mean free path and average velocity. Now coming to the next concept, that is difference between ideal and non-ideal gases. I think you have studied in this in lower classes. So what is the ideal gas? Ideal gas is a gas that obey ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, and where n are the number of moles of the gas and P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant and T is the temperature. Then coming to this non-ideal gas, it is a gas that do not obey the ideal gas equation को follow नहीं करेगी, but किसको follow करती है? एक equation है जिसको हम later on derive करेंगे, वंडरवाल इक्वेशन को वो फॉलो करते हैं, एंड इट इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT. A और B यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, P और V प्रेशर वॉल्यूम होता है, R आप गैस कांस्टेंट, इट इज द टेम्परेचर. Second point of difference is that the ideal gas obey gas equation under all conditions of temperature and pressure. किसी भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आइडियल गैस आपका आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, बट इट ओबेज द गैस इक्वेशन ओनली एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर here. So this is how a ideal gas equation follows the gas laws. Coming to the third point of difference, that is concept of ideal gas is hypothetical. No gas is ideal. All gas that exist are real gases. तो जितनी भी gases आपकी available है वो आपकी सारी की सारी क्या हैं? Real gases हैं. Now coming to the next point of difference, hydrogen, oxygen, nitrogen gases do not follow the ideal gas behavior. Ideal gas behavior को follow नहीं करती हैं, and these are nearly ideal. ये आपकी exactly ideal नहीं है, these are nearly ideal. Gases like CO2, SO2 and NH3 liquefy easily and show the large deviation from the ideal behavior. तो ये आपकी कौन सी हैं? Real gases हैं. अगर बात करें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैसेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल, मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कंसिडरेशन में आएगा एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. नाउ कमिंग टू ए फैक्टर दैट स्टडी द डेविएशंस फ्रॉम गैस लाज. गैस लाज कौन से आपके पास? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनसे डेविएशंस हमने स्टडी करनी है गैस लाज का, डेविएशंस ऑफ गैसेस फ्रॉम गैस लाज, and it is studied in terms of a compressibility factor, and thereafter we will take up the concept of boil temperature. तो पहले हम चलते हैं बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपका. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर बात करें, PV is equal to a constant or P is reciprocal to V, inversely proportional to V, and then or you can say PV is equal to a constant quantity. We have discussed this factor, this law in earlier in the starting of our classes. और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर हम आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं तो जितना प्रेशर में इंक्रीज करते हैं उतना ही आपका क्या होना चाहिए? अगर मैं प्रेशर में इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम में उसके प्रोपोर्शनल डिक्रीज होना चाहिए. तो आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका आएगा कांस्टेंट. तो ये हो गया आपका आइडियल बिहेवियर. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ PV शुड बी ए कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर, किसी भी प्रेशर कंडीशन पे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन
टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, इफ आई वुड लाइक टू ड्रॉ ए प्लॉट पी वी वर्सेज पी, तो वो कैसा आना चाहिए, इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है जी। तो वो क्या होगी गैस, अगर वो इस तरीके से फॉलो करती है, इस ट्रेंड को फॉलो करती है, दैट इज विल बी ए आइडियल गैस। बट हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो ऐसा किसी गैस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो देखते हैं, हाउएवर इट इज फाउंड दैट नो गैस फॉलोज दिस लाइन, इस लाइन को कोई फॉलो नहीं करते, एंड दिस इज नॉन एज डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो कॉन्सेप्ट आ जाता है व्हाई ए गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो रीजन क्या होगा उसका, क्योंकि आपका जो पी वी वर्सेज प्रेशर शुड बी ए कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट और पैरेलल लाइन, कांस्टेंट आपका आना चाहिए, लेकिन आपका क्या होगा, प्रेशर अगर हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम आपका प्रोपोर्शनली चेंज नहीं होगा, उसमें डेविएशन आपका आएगा। तो उसका रीज़न और डिटेल में हम आगे करेंगे। तो हम अगर प्लॉट करना चाहें पी वी वर्सेज प्रेशर, सो हेयर पी वी 5, 10, 15, 20 ये आपका वैल्यूज आती हैं, एंड हेयर इट इज़ इन एटमॉस्फेयर 200, 400, 600, 800 एंड 1000। सो देर आर सम गैसेज फॉर विच दिस प्लॉट वाज एलोबरेटेड। तो मैं लेके चलता हूँ, एंड अगर आपका देखो आइडियल बिहेवियर है तो दिस विल बी ए पैरेलल लाइन, ये आपकी एक पैरेलल लाइन आएगी, और ये पैरेलल लाइन क्या शो करेगी आपकी, द गैस बिहेवियर इज आइडियल। अगर कोई भी गैस इस पाथवे को फॉलो करती है, पैरेलल लाइन आती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर एक्सिस, तो आपका क्या होगा, वो आइडियल गैस होती है। तो देखते हैं क्या वो आइडियल गैस किसी के लिए आइडियल गैस बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। सो दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो देयर इज ए स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीज इन प्रेशर पी वी इंक्रीजेज। आपका हम सोचते हैं कि दिमाग में तो ये है कि आपका क्या पी वी आपका कांस्टेंट आना चाहिए, आइडियल बिहेवियर शो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं शो करता है। दिस इज कॉल्ड द डेविएशन। लाइकवाइज फॉर हीलियम गैस, तो हीलियम गैस के लिए भी आपका ये सेम आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। लेकिन कुछ एक गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लिक्विफिकेशन शो करती हैं, जो आपका CO2 है, CH4 है, अमोनिया हो गया, तो ये क्या करेंगे, पहले तो आपका डिक्रीज होगा, देयर आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर आपका क्या होगा, कर्व आपका इंक्रीज होगा। मीन्स प्रेशर विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पहले डिक्रीज होगा और उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइकवाइज इन केस ऑफ CH4 ये आपका डिक्रीमेंट होगा, देन देयर आफ्टर इट विल इंक्रीज। द लाइकवाइज फॉर दिस CO2, तो पहले कर्व आपका डिक्रीज होगा, उसके बाद आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ये रीज़न क्या है। तो कुछ गैसेस के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपका एक इंक्रीज होता है रेगुलरली, लेकिन कुछ गैसेस के केस में आपका पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो इसका हम रीज़न एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे हम बात करें एट लो प्रेशर। सो एट लो प्रेशर मीन्स इस पॉइंट ऑफ एरिया की तरफ मैं जाता हूँ। सो एट लो प्रेशर जब आपका केवल आपका 1 to 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो यहाँ पे आपका जितने भी गैसेज हैं एट दिस पॉइंट, देखो वो आपके दैट लाई ऑन PV वैल्यू लाई ऑन आइडियल गैस लाइन, इस लाइन पे आपका लाई करती हैं। तो लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा आपका, लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे आपका क्या होगा, गैसेस आपका आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। तो दिस कर्व शोज दैट एट लो प्रेशर गैसेस विल बिहेव आइडियली। बट डेविएशंस हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रीजंस। तो पहले हम लेके चलते हैं आपका तो कुछ एक कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद आपका हम रीजन भी एक्सप्लेन करेंगे उनका। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हेयर, सम कंक्लूजन्स आर फ्रॉम दिस ग्राफ आर, फर्स्ट कंक्लूजन इज दिस, गैसेस लाइक hydrogen, helium, the product of pressure volume increases continuously with increase in pressure. So इसका रीज़न क्या है कि आपका प्रेशर मैं इंक्रीज करता हूँ तो आपका क्या है, PVV आपका क्या होता है, कांस्टेंट, आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। ठीक है जी। ये आपका P और V का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आता है, वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो हमने प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो गया, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है
वो प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा, उससे वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है। तो इस वजह से पी वी का वैल्यू क्या होगा, लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। तो रीज़न क्या है इसका, विद इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस लाइक हाइड्रोजन हीलियम डू नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ है तो आपका वॉल्यूम आपका डिक्रीज होना चाहिए तब प्रोपोर्शनली, ठीक है जी, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द पुअर इंट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या है आपके पास, दिस में बी ड्यू टू द फैक्ट दैट कि उनमें इंट्रैक्शन क्या होगी, पुअर इंट्रैक्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो डिक्रीज होना चाहिए था वो नहीं होगा, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम जितना डिक्रीज होना चाहिए था वो उतना नहीं होगा। तो रिजल्टेंट नेट क्या हो जाएगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा आएगी। तो देयर विल बी इंक्रीज regular, the factor this PV will increase regularly with increase in pressure P। तो ये आपका फैक्टर यहाँ पे हमने एलोबरेट कर दिया। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो हमने कंक्लूड किया, द प्रोडक्ट ऑफ PV डिक्रीजेज फर्स्ट। पहले डिक्रीज होता, हम लेके चलते हैं कौन सी गैसेज अब, CO2, CH4 एंड कार्बन मोनोक्साइड गैसेज। द प्रोडक्ट ऑफ PV डिक्रीजेज फर्स्ट एंड रीचेज टू ए मिनिमम वैल्यू। तो पहले वो डिक्रीज होगी, मिनिमम वैल्यू पर जाएगा। देर आफ्टर प्रोडक्ट इंक्रीजेज रेगुलरली। प्रोडक्ट किसका, पीवी का प्रोडक्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। सो इसका रीजन एलैबोरेट करते हैं। अब डिक्रीमेंट का क्या है, प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम आपका प्रोपोर्शनली आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे पीवी का वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो इसका मतलब क्या है, जो इंट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो इसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो ज़्यादा डिक्रीज होगा। सो हेयर एट स्मॉल प्रेशर की बात करें, देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विद इंक्रीज इन प्रेशर। सो दिस इज ड्यू टू द गुड इंट्रैक्शन। तो बहुत अच्छी इंट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल में उस प्रेशर पे between the gas molecules and that results more decrease in the V। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा डिक्रीज होगा विद स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम आपका क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, डिक्रीमेंट शो करेगा। दैट्स व्हाई इट विल डिक्रीज फर्स्ट। बट कुछ एक प्रेशर पॉइंट के बाद पर्टिकुलर प्रेशर के बाद आपके क्या होगा, पीवी का प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। सो आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रेशर this product PV increases with increase in pressure, and this might be due to the reason that beyond a particular pressure gas start repulsing। तो अब तक तो अट्रैक्ट हो रही थी लेकिन अब ज़्यादा क्लोज आने के बाद वो क्या होगा, आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस वहाँ पे क्या होंगे, एनफोर्स हो जाएंगे। सो रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगे वहाँ पे। सो ड्यू टू विच देयर इज ए स्मॉल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करोगे, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करने पर भी आपका वॉल्यूम में क्या होगा, स्मॉल डिक्रीज होगा। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन्स, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शो इंक्रीमेंट इन इट्स वैल्यू विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो दिस इज हाउ व्हाई सच गैसेज शोज डिक्रीमेंट फर्स्टली एंड देयर आफ्टर इट डिक्रीजेस। तो हम अगर बात करें जो आपका प्रेशर वर्सेस पी, हमने कर्व जो पढ़ा उसको एक टर्म में हम उसको एलोबरेट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट टर्म, दैट इज कॉल्ड ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। एंड व्हाट इज दिस, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बाय ए रियल गैस। तो नॉन आइडियल गैस को हम रियल गैस कह देते हैं। तो रियल गैस क्या करेंगी, जो आपके आइडियल बिहेवियर से शो करेंगे, डेविएशन शो करेंगी। एंड इट दिस कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ ए न्यू फंक्शन दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे। एंड दिस इज डिनोटेड बाय जेड। तो यहाँ पे हम इसको किससे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से रिप्लेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जेड इज कॉल्ड, तो जेड क्या आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आरटी। द रेशियो ऑफ पीवी टू आरटी इज कॉल्ड ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ कमिंग टू द वैल्यूज ऑफ जेड। अगर हम बात करें आइडियल गैस के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी
the value of Z will be equal to 1 for ideal gases. You can say independent of temperature and pressure. For real gases, Z will not be equal to 1 and it will vary. It means it will vary with temperature and pressure. Now we will discuss the variation of compressibility factor Z with pressure at constant temperature. अब तक हमने किया था PV वर्सेस P. अब हम PV अपॉन RT वाले फैक्टर को, दैट इज उसको हम कहते हैं Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, प्रेशर की विद रेस्पेक्ट हम उसको वेरिएशन को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो हम अगर प्लॉट करें Z वर्सेस P फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, तो जो आपका फिगर आएगा बिल्कुल सेम आएगा जो अब तक हमने पढ़ा था. वो क्या था आपके पास? इट वाज कि आपका ये आइडियल बिहेवियर था. Z का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है जी. यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, ये आइडियल बिहेवियर के लिए है, ठीक है जी. देन हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन CO2 के लिए पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. ये सेम पैटर्न आएगा जो हमने अब तक पढ़ा था इन केस ऑफ PV वर्सेस P. ये वेरिएशन जो हमने किया था, तो सेम आपका कर्व ऑब्टेन होगा. सो सेम आपका क्या होगा? कर्व ऑब्टेन. सो एट लो प्रेशर, तो अगर ग्राफ सेम है तो लो प्रेशर 1 to 10 एटमॉस्फेयर, Z वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एंड दिस इंडिकेट दैट रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर. तो मैंने पहले उस कर्व में भी बात करी थी, लो प्रेशर पे आपका रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती हैं? आइडियल बिहेवियर की तरह बिहेव करती हैं. द कर्व फॉर हाइड्रोजन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन प्रेशर, हैंस लाई अबव द आइडियल कर्व, दैट इज Z इज इक्वल टू 1. तो Z इज इक्वल टू 1 से क्या होगा? वो ग्रेटर वैल्यू आएगा. तो यहाँ पे हम उस कर्व को ड्रॉ एलोबरेट करना चाहें, PV अपॉन RT शुड वर्सेस P, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा आपके पास? दिस इज द कर्व ऑफ हाइड्रोजन, तो रेगुलरली इंक्रीमेंट आएगा. नाइट्रोजन में पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा. लाइकवाइज इन केस ऑफ Z वैल्यू, लाइकवाइज इन केस ऑफ CO2 द वैल्यू विल डिक्रीज फर्स्टली एंड इट विल इंक्रीज. तो ये आपका जो आइडियल बिहेवियर के लिए Z का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ग्राफ है वो आपका वो चेंज हो जाएगा. दिस वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0.51, 1.5 एंड 2. तो जितना ज़्यादा आपका वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन Z इक्वल टू 1 से होगा, उतना ही आपका बिहेवियर, डेविएशन आपका आइडियल बिहेवियर से चेंज होगा. सो मोर विल बी द डेविएशन इन द गैस बिहेवियर. तो अगर हम बात करें in case of N2CO2, Z decreases first, that is Z is less than 1 with increase in pressure. However, beyond a particular value of pressure, Z value क्या होगा आपके पास? That will start increasing with increase in pressure. The reason for that we have explained earlier. तो हमने जो अब तक बात करी थी, इसका रीज़न क्या था हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम क्या रीज़न था हाइड्रोजन के केस में? आपका रेगुलरली इंक्रीज होता है. तो रेगुलरली इंक्रीज होने का मतलब क्या है? प्रेशर आपने इंक्रीज किया, ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या है? डिक्रीज होगा, बट वो आपका लेस डिक्रीमेंट होगा, ठीक है जी. क्यों होगा? क्योंकि आप में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आप में पुअर इंट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम आपका जो स्मॉल डिक्रीमेंट आएगा. तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? PV का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो PV का वैल्यू इंक्रीज होगा तो PV अपॉन RT का वैल्यू भी आपका इंक्रीज हो जाएगा. और PV अपॉन RT क्या होता है? Z. तो Z का वैल्यू भी आपका इंक्रीमेंट शो करेगा. लेकिन हम बात करें इसकी किसके केस में? CO2 के केस में और नाइट्रोजन के केस में पहले डिक्रीज होता है. तो डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लो प्रेशर मीन्स स्मॉल चेंज करते हैं प्रेशर में, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा? तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं स्मॉल, तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा डिक्रीज होगा. क्यों? गुड इंट्रैक्शन की वजह से. गुड इंट्रैक्शन से क्या हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगी, तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा और PV अपॉन RT का वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट शो करेगा. और PV अपॉन RT क्या होता है? आपका Z वैल्यू. तो Z वैल्यू भी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा. पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये क्या है?
CO2 के लिए, N2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ये फैक्टर आपका इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका वॉल्यूम आपका गैस का रिड्यूस हो गया, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ P ज़्यादा इंक्रीज, प्रेशर अगर आप ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा? लेस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट करेंगे ज़्यादा एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज, जिसकी वजह से क्या होगा? पीवी का प्रोडक्ट इंक्रीमेंट शो करेगा, पीवी अपॉन आरटी भी इंक्रीज होगा और आपका जेड का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द वेरिएशन ऑफ जेड वर्सेस पी। सो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, what do you understand by the compressibility factor, or explain the value of compressibility factor with a variation of compressibility factor with respect to pressure at constant temperature. Another question क्या बनता है? For some cases hydrogen and helium the compressibility factor increases regularly, however in case of nitrogen and carbon dioxide, CH4, ammonia, it decreases firstly and then increases. Explain. So these are the very important, this is very important topic, so you have to take this very seriously. Thank you very much for listening me so carefully.